Hello students, our today's topic is flow of blood through the heart. That is also called blood circulation. ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरह आ सकता है. Describe the blood circulation, explain the flow of blood through the heart and explain about cardiac cycle, explain the physiology of cardiovascular system. तो किसी भी तरह से ये हेडिंग करके आपको क्वेश्चन आ सकता है. आंसर इसका एक ही है कि हार्ट में से हमारा ब्लड कैसे फ्लो करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द हार्ट टू एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट. तो पहले हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम और उसकी प्रॉपर करेंगे लेबलिंग. फिर हम करेंगे कि कैसे हार्ट में हमारा ब्लड जो है फ्लो करता है. तो आज हम यूज करेंगे डिफरेंट कलर्स to draw the diagram because we have to explain the circulation of oxygenated blood and deoxygenated blood. So we have to use the these two colors we can use to explain the cardiac circulation. This is the superior vena cava and this is the inferior vena cava. As we know, this is the right atrium, this is the right ventricle, this is the left atrium and this is the left ventricle. These are four chambers of the heart which is divided by this septum. This septum divides the heart into right side and left side, and again the right side is divided into upper chamber and lower chamber, and left side is also divided into upper chamber and lower chamber with the help of atrioventricular valves. These are the atrioventricular valves. This is also atrioventricular valve. This is left atrioventricular valve and this is right atrioventricular valve. These are pulmonary veins. This is the pulmonary artery. And this is aorta. Pulmonary artery is guarded by pulmonary valve and aorta is guarded by aortic valve.
is the right pulmonary artery and this is the left pulmonary artery. So ये है हमारी normal structure of the heart and its parts. As we know, there are 4 chambers in our heart. As we discussed in the previous our video, there are 4 chambers of the heart, and from the right side there is region of pulmonary artery which carry the blood towards the lungs for purification, and from the left side there is region of aorta which carry oxygenated blood to the whole body organs. So आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन की, कि कैसे हमारा ब्लड जो है हमारी हार्ट के थ्रू सारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है। तो सबसे पहले क्या है, दीज आर द लार्जेस्ट वेन्स, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, which collect deoxygenated blood from the upper body parts and lower body parts. These collect the deoxygenated blood which have more carbon dioxide as compared to oxygen. So these both carries the deoxygenated blood from upper body parts and from lower body parts and drain into the right atrium. Then after the atrial contraction, during the atrial systole, this deoxygenated blood comes downward through the atrioventricular valve into the right ventricle. तो इतना आपको क्लियर है। जो सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा है, इसका काम क्या है, इसने अपर बॉडी पार्ट से एंड लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, वो कलेक्ट करके लेके आना है और कहाँ पे ड्रेन करना है, इनटू द राइट एट्रियम में ड्रेन करना है। व्हेन एट्रिया हमारे कंट्रैक्ट करेंगे, ड्यूरिंग एट्रियल कंट्रैक्शन, this valve, this atrioventricular valve will open. This valve is like this shape. When upper pressure arises, then this valve open into the lower portion and drain blood towards the lower side, towards the right ventricle. जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड कहाँ पे मूव होता है, टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। सो अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे अकमुलेट हो गया, तो यहाँ से ब्लड किधर जाना है, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। जब नीचे वाला हार्ट का पार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं, व्हेन द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो into the pulmonary artery through the pulmonary valves. Pulmonary valve के थ्रू ब्लड कहाँ पे जाता है, through the right pulmonary artery and left pulmonary artery, blood goes to the lungs. Blood goes to the lungs for purification. ये जो pulmonary artery है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, और ब्लड कहाँ तक कैरी करके लेके जाती है, आगे चल के ये डिवाइड हो जाती है इनटू राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, एंड इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द राइट लंग एंड लेफ्ट लंग फॉर प्यूरिफिकेशन। तो इतना जो हमारा ग्रीन से ये इसको डिफरेंट कलर दिया है, तो ये है हमारी सर्कुलेशन रिलेटेड टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी अपर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड नीचे की तरफ मूव होता है और कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। किसके थ्रू आता है, थ्रू द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू नीचे की तरफ आ जाता है। और जब नीचे वाला हार्ट का पार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसे बोल देते हैं, तब हमारा यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, जो कि आगे चल के राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो गई, और ये दोनों लेके जाएंगी ब्लड टुवर्ड्स द राइट लंग एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग फॉर प्यूरिफिकेशन। सो दीज आर द ग्रेट ब्लड वेसल्स
This is the only artery, this pulmonary artery is the only artery which carry deoxygenated blood. अदरवाइज हमारी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज होती हैं सब में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारी एक बॉडी की आर्टरी है जिसमें कि गंदा ब्लड होता है, बाकी हमारी बॉडी की सभी आर्टरीज में क्या होता है, साफ ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। तो ये एक इसका एक्सेप्शनल पॉइंट है। तो आगे चल के लंग्स में जाके ये आर्टरीज जो है दोनों राइट एंड लेफ्ट, अगर हम देखें तो ये आगे चल के अलग अलग अपनी ब्रांचेस बना लेगी। हर एक आर्टरी डिवाइड एंड रीडिवाइड हो के ब्रांचेस बना लेगी, और जब तक ये लंग्स के स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुंचेगी। व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट लंग्स की क्या है, एल्वोलाई, और इन आर्टरीज ने डिवाइड एंड रीडिवाइड होके क्या बना लिया, कैपिलरीज बना। तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी। अभी लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है, लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, और कैपिलरीज में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो दोनों गैसेस ने क्या करना है, एक्सचेंज होना है। लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो जाएगी और लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मूव हो जाएगी। तो दोनों गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब गैसेस मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो लंग्स में जो ब्लड गया थ्रू द लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, वहां पे आर्टरीज ने जाके डिवाइड एंड रीडिवाइड हो के बहुत ही फाइन ब्रांचेस बना ली जिससे हम कैपिलरीज बोलते हैं। उनकी मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है जिसमें कि गैस एक्सचेंज पॉसिबल है। तो इन्होंने एक फाइन ब्रांचेस का एक नेटवर्क बना लिया, और एल्वोलाई भी लंग की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी भी मेम्ब्रेन बहुत थिन होगी। तो दोनों थिन मेम्ब्रेन्स के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो गैस एक्सचेंज हो गई। अभी हमारा ब्लड जो कैपिलरीज में हो गया वो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो कैपिलरीज अभी कंबाइन होके यूनाइट होके पल्मोनरी वेन्स बनाएगी, वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहां पे लेके आएगी पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन द लेफ्ट एट्रियम। तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पे आ गया, इन द लेफ्ट एट्रियम। अभी हमारा लेफ्ट साइड पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। तो जब एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं तो इधर का ब्लड मूव होता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मूव होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ब्लड मूव फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एयोटिक वॉल्व के थ्रू कहाँ चले जाना है, सारी बॉडी में सप्लाई हो जाना है। सारी बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई हो जाना है टू द ऑल बॉडी ऑर्गन्स। तो ये है हमारी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट करके लेके आती है राइट एट्रियम में। यहाँ से ब्लड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और लंग्स में होता है गैस एक्सचेंज वाला प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन वाला। अभी हमारी कैपिलरीज ने वहां पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देनी है और ऑक्सीजन वहां से पिकअप कर लेनी है। तो दिस प्रोसेस इज पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो अभी हमारी कैपिलरीज में क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। उन कैपिलरीज ने यूनाइट करके क्या बनानी है, छोटी छोटी पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन्स ने क्या करना है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ पे ड्रेन करना है, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में हमारा कलेक्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हेन द एट्रिया कंट्रैक्ट फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ब्लड गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड
from the left ventricle blood goes through the aorta to the upper and lower body parts to the all body organs. हमारी बॉडी को क्या सप्लाई हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये जो अयोटा है ये ग्रेट ब्लड वेसल है जो हमारी सभी बॉडी के अपर एंड लोअर सेगमेंट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने सप्लाई करना है. इसने भी वैसे ही आगे चल के डिवाइड एंड रीडिवाइड हो के क्या बना लेनी है? फाइन ब्रांचेस बना लेनी है और फाइनली टाइनी कैपिलरीज बना लेनी है, जिसकी इसकी तो मेम्ब्रेन बहुत थिक होगी. ये एक मोटी पाइप की तरह है, इसकी मेम्ब्रेन बहुत थिक है ताकि ये हार्ट जब हमारा कॉन्टैक्ट होता है ये प्रेशर बियर कर सके, ये उस प्रेशर को टॉलरेट कर सके. अदरवाइज अगर इसकी मेम्ब्रेन थिन होगी तो ये पाइप क्या है? फट जाएगी. अगर इसकी जो है मेम्ब्रेन थिन हो तो इसकी मेम्ब्रेन मोटी होती है, बट जब तक ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर सेल टिश्यू तक पहुंचती है तब तक इसकी मेम्ब्रेन बहुत पतली हो जाती है और ये क्या बना लेती है? कैपिलरीज बना लेती है. तो अब सेम वही प्रोसेस होना है. एक साइड हो गए हमारे सेल लाइन टिश्यू बॉडी के. सभी ऑर्गन हमें पता है सेल टिश्यू के बने होते हैं, तो सेल टिश्यू को हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है. तो सेल लाइन टिश्यू की वेरी थिन मेम्ब्रेन होगी और कैपिलरीज की वेरी थिन मेम्ब्रेन होगी. अभी कैपिलरीज ने क्या करनी है? सेल टिश्यू को ऑक्सीजन दे देनी है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेनी है. अभी हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी के ऑर्गन्स को और ऑर्गन्स के आगे सेल टिश्यू को सप्लाई हो गया था. यहाँ पे आके फिर वही डिफ्यूजन वाला गैस एक्सचेंज वाला प्रोसेस होगा जब तक ब्लड जो है बॉडी के सेल टिश्यू तक पहुंचेगा. और अब हमारे सेल टिश्यू को ऑक्सीजन मिल गई और वहां से ब्लड ने क्या कैरी कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर ली. अब कैपिलरीज में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. तो ये हो गया हमारा अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इन्हीं कैपिलरीज ने दोबारा से यूनाइट होके क्या बनानी है? वेन्स बना लेनी है. और फिर इन्होंने ही क्या वेन्स के थ्रू वेन्स ने जो है बिग वाली वेन्स उन्होंने मिलके क्या बना लेना है? इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा. और यहाँ से हमारा अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आके ड्रेन हो जाना है. तो ऐसे ही हमारे सर्कुलेशन जो है ब्लड का चलता रहता है. तो पूरी है हमारी जनरल सर्कुलेशन. ये डिवाइड हो जाती है आगे चल के व्हाट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड व्हाट इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो राइट एट्रियम से लेकर ब्लड राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया और लंग्स से प्यूरिफाई होके लेफ्ट एट्रियम तक आ गया. ये हमारा ब्लड जो है इकट्ठा होके प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में चला गया और लंग्स से साफ होके लेफ्ट एट्रियम में आ गया. up to this level this circulation is called pulmonary circulation. कि कैसे ब्लड जो है लंग्स तक जाता है इकट्ठा होके. और लंग्स वर्ड जो है हम उसे पल्मोनरी वर्ड से भी डिनोट करते हैं. सो दैट्स व्हाई अप टू दिस लेवल दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक और लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे सिस्टम में हमारे सारे सिस्टम में बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड चला गया. सो दैट्स व्हाई लेफ्ट एट्रियम से लेकर सारी बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचा और सेल टिश्यू को ऑक्सीजन देके दोबारा से गंदा ब्लड बनके डीऑक्सीजनेटेड बनके दोबारा से राइट एट्रियम में आता है. दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो इसे हम फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं. सिंपल एरो देके कि कैसे ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है वो आगे हम चल के एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं. और इतना ये सारा क्लियर हो गया. फ्रॉम द राइट एट्रियम से लेकर कैसे ब्लड साफ होकर लेफ्ट एट्रियम तक आता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू सारी बॉडी में गया और बॉडी को ऑक्सीजन देके दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड बनके कैसे राइट एट्रियम में आ गया. दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. नेक्स्ट हम करेंगे इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे कि कैसे हम इसे सिंप्लीफाई कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट द फ्लो ऑफ ब्लड. एज वी नो द सुपीरियर वेना केवा एंड inferior vena cava both carries blood and drain it into the right atrium. Then from the right atrium
blood goes to the right ventricle through the right atrioventricular valve. Then from the right ventricle, blood goes to the pulmonary artery. Through the pulmonary valve. Then from the pulmonary artery, blood goes to the lungs for purification, or we can say for oxygenation. After the purification, the blood comes back to the left atrium. तो लेफ्ट एट्रियम में हमारा अब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ब्लड गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल. From the left ventricle, blood goes to the aorta through aortic valve. Then from the aorta, blood goes to the all body organs and also to the heart itself. तो ये है हमारा सिंपल फ्लो चार्ट कि कैसे ब्लड जो है हमारे पूरे हार्ट में कैसे सर्कुलेट करता है. सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. So these both are the greatest blood vessels, greatest veins which collect the deoxygenated blood from the upper and lower body parts and drain into the right atrium. Then during atrial systole, जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर के थ्रू ब्लड कहाँ पे आ गया, हमारा राइट वेंट्रिकल में आ गया. तो जब वेंट्रिकल नीचे वाला हार्ट का जो है एपेक्स वाले वेंट्रिकल से स्टोर करते हैं तो ब्लड जो है पल्मोनरी वॉल्व्स के थ्रू कहाँ पे चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया. ये जो पल्मोनरी वॉल्व जो होते हैं ये सेमिलुनर वॉल्व्स होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व्स होते हैं. तो ये वॉल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते ब्लड का. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है उसको दोबारा से राइट वेंट्रिकल में दोबारा से वापस नहीं आने देते, मतलब कि ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देते. तो ऊपर की तरफ ही ब्लड मूव करेगा. पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन और वी कैन से फॉर प्यूरिफिकेशन. तो लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है. लंग्स में क्या होता है, गैस एक्सचेंज वाला प्रोसेस होता है. लंग्स की तरफ हमारी जो ब्लड में CO2 है वो मूव हो जाती है और लंग्स में ऑक्सीजन जो ज्यादा होती है वो हमारी कैपिलरीज की तरफ मूव हो जाती है. तो अभी हमारा क्या हो गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा 4 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ड्रेन करती है आगे. तो जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू ब्लड आ गया फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं देन आयोटिक वॉल्व के थ्रू ब्लड ने कहाँ जाना है, आयोटा में जाना है. दैट इज द फर्स्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी. तो आयोटा क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल बॉडी ऑर्गन्स. सभी सिस्टम्स में ये सभी सेल टिश्यू की तक ये आयोटा जो है डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर अपनी ब्रांचेस बना के ये आर्टरीज बना के सभी बॉडी ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई करता है. ठीक है जी. एंड ऑल्सो टू द हार्ट इटसेल्फ.
हार्ट को भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, क्योंकि जैसे अदर बॉडी ऑर्गन्स है वैसे हार्ट भी हमारा एक ऑर्गन है, उसे भी दिन रात काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो भी सेल टिश्यू का बना है। तो हार्ट को सेल्फ ब्लड सप्लाई भी होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, वो होती है कॉरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, जो हम अलग से करेंगे व्हाट इज द कॉरोनरी सर्कुलेशन। तो ये हमारा हो गया सभी बॉडी ऑर्गन्स की तरफ हमने सभी सेल टिश्यू को हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई कर दिया। तो सेल टिश्यू में भी अगेन वही प्रोसीजर होना है। सपोज कर लो ये है हमारा कोई भी बॉडी का सेल, इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ने इसके ऊपर एक नेटवर्क बना लिया, तो उन कैपिलरीज में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हमारे सेल टिश्यू में जो लगातार मेटाबॉलिज्म वगैरह सारे प्रोसेस होते रहते हैं, एनर्जी फॉर्म होती है, हमारी बॉडी के डेली हम काम करते हैं, तो वहाँ सेल जो है ऑक्सीजन यूज करते हैं ना, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये कैपिलरीज में डाल देंगे और ऑक्सीजन जो है कैपिलरीज से ले लेंगे, पिकअप कर लेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे भी गैस एक्सचेंज हो गया डिफ्यूजन के प्रोसेस से, तो अभी हमारी कैपिलरीज में क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, क्योंकि सेल टिश्यू ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में डाल दी और कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन थी वो उन्होंने ले ली वहां से। तो अभी हमारा ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो यही ब्लड जो है वेन्स ने कलेक्ट करके दोबारा से कहाँ लेके आना है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू दोबारा से राइट एट्रियम में लेके आना है, ताकि हमारा होल जो है सर्कुलेशन का प्रोसीजर ये ऐसे ही चलता रहे। तो राइट एट्रियम से लेकर कैसे ब्लड लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड अप टू दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड हमारे लेफ्ट एट्रियम से ब्लड होता हुआ कैसे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है और दोबारा डीऑक्सीजनेटेड होके कैसे हमारे राइट एट्रियम तक पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन।